Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Cambridge Mathematics 4024 and I am your maths teacher Arzu. As you know, last week we were discussing about the topic matrices and we had done the discussion about the types of matrices and order of matrices and how to find the unknown from a two matrices when two matrices are equal. Okay, now in this lesson we will discuss about the addition of two matrices, multiplication of matrices, and how to find the determinant of matrices and inverse of matrices, and we will do the exercises related to these topics. So let us start. First of all, I will tell you about the addition and subtraction of matrices. Okay, first I will tell you how when two matrices are conformable for addition and subtraction. So two matrices are conformable for addition and subtraction when they are having the same order. As all of you already know about this, what is the order of matrices. Order of matrices क्या होता है? First of all, you will count the number of rows and then you will count the number of column of a given matrices. Then the rows by number of rows by number of column is called the order of matrices. Okay, so two matrices, if you are having two matrices and you have to find the addition of these two matrices and subtraction of these two matrices. Okay, in subtraction and addition, in both you are having the same order of a matrices. Okay, when two matrices are having same order, then they are conformable for addition. Okay, so you can see that in this example we are having two matrices A and B. You can see that order of matrix A is, what is the order of matrix A? We are having two rows and two column in matrix A. It means that order of matrix A is 2 by 2. Same like we are having two rows and two columns in matrices B. It means that order of matrix B is 2 by 2. So it means that two matrices, these two matrices A and B are having same order. That's why they are conformable for addition as well as subtraction. But in matrix C, you can see that you are having two rows and three columns. Okay, the order of this matrix is totally different from A and B. So matrix C cannot be added in the matrix A and B, because in matrix A and B, because the matrix C are having order 3 by 2, but matrix B and A is having the order 2 by 2. So A and B can be add or subtract in each other, but C can't be add in A and B because C is having the different order from the A and B. So for the addition and subtraction, matrices order we should be same. So addition and subtraction matrices can be added or subtracted if they have the same order, which I have already told you. Corresponding entries are added or subtracted. ठीक है, इसमें corresponding entries आपस में क्या होती हैं? ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल इसमें यूँ करते हैं, जैसे 2 है, 2 विल बी ऐड इन 3, 3 will be add in 0, and second row में क्या है? -4 and 1. -4 will be add in 1 and 1 will be add in -2. Same like they will be subtracted. For the subtraction you will use the sign of subtraction. Okay, now what is the स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेफिनेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक वाज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. देन व्हाट इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन? यू ऑलरेडी नो दिस. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जैसे आपको पता है, आप यू हैव ऑलरेडी नो दिस इन योर फिजिक्स. ठीक है, वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी विच आर हैविंग मैग्नीट्यूड बट नॉट अ डायरेक्शन. ठीक है, अब इन मैथमेटिक्स एनी कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, whenever you are going to multiply a single matrix by any constant number, it means that you are finding the scalar multiplication of matrices. You can see in the example, you are having a matrix A, 1 2 3 4 5 6. If you have given you have to find 2A, so 2A means you will multiply by every entry of matrix A by 2, like this. First entry matrix A की क्या है? 1, so 1 multiply by 2. Second entry matrix A की क्या है? 2, then 2 multiply by 2. Third entry क्या है? 3, then 3 multiply by 2. Same like fourth entry क्या है? 4 multiply by 2. Same like 5 multiply by 2, 6 multiply by 2. It means that every entry, every element of matrix A will be multiplied by 2. Then you will get the matrix 2, another new matrix 2A, which is 2 1s are 2, 2 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2 3s are 6,
then 6, 4 2s are 8, 5 2s are 10, 6 2s are 6 2s are 12. So you have got new matrix 2a. So this is called the scalar multiplication of matrix. So what is the definition for a matrix A and a scalar number C? यानी कि अगर आपके पास एक matrix A हो और एक scalar number C हो, C can be any constant value. The scalar product CA, जैसे यहाँ आपके पास 2a आया था ना, तो C एक आपके पास scalar value होगी और A आपके पास कोई भी matrix का name है. Means to multiply each element of A by the value of C, जो कि आपको मैंने अभी एग्जाम्पल में बताई है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज multiplication of two matrices. Same like आपको I have already told you कि two matrices are conformable for addition and subtraction when they are having the same order. जब उनका order same होगा तो they are having they can be added or subtracted. Same like two matrices are conformable for multiplications. Then what you will do कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, if you are having two matrices, ठीक है, you will count the number of column in first matrix. आप फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे. यहाँ पे ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी नहीं है. मल्टीप्लिकेशन के लिए कब कन्फॉर्मेबल होंगे कि जब टू मैट्रिसेस आपको गिवन होंगे, दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स. के पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेकेंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो. ठीक है, देन दे आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. इट डजेंट मीन डैट कि उनके ऑर्डर सेम हो. यू कैन सी डैट. देखो आपको टू मैट्रिक्स गिवन है. एक आपको फर्स्ट मैट्रिक्स क्या गिवन है, 7 1 3 4. दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स. इट्स मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है, 2 by 2, बिकॉज इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, देर आर 2 rows and 2 columns. एंड इन मैट्रिक्स बी यू आर हैविंग 2 rows and 3 columns. सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 by 3. सो व्हाट आई हैव सेड यू, मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू कि आप देखें आपके पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, इन दिस मैट्रिक्स द नंबर ऑफ कॉलम इज 2. देखिए उसने आपको रेड लाइन में बताया हुआ है कि कॉलम ए में नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2 है, जबकि मैट्रिक्स बी में नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है. इट्स मीन्स दैट नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी. ठीक है, बट यू कैन सी दैट द ऑर्डर ऑफ दीज टू मैट्रिक्स आर नॉट सेम. इट्स नॉट आर पार्ट. हमें ये नहीं चाहिए कि इसका ऑर्डर सेम हो, बट वी विल ओनली रिक्वायर दिस कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी. सो द डेफिनेशन इज दिस: प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी डन ओनली इफ दे टू कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. टू मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन व्हेन द नंबर ऑफ, देखें, व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द number of number of column on the first matrix is equal to the number of rows in the second matrix. ठीक है, so it means that आपके पास क्या हो गया है यहाँ पर कि two matrices are conformable for multiplication. Just I am simply telling you about the theoretical portion of this chapter, how when two matrices are conformable for addition, subtraction, multiplication. But we will do the practice in these about these topics, about these multiplication and addition or subtraction in the exercise. So two matrices are conformable for multiplication when the number of column in first matrix is equal to the number of rows in second matrix. ठीक है. Now the next topic is determinant of matrix. Determinant of matrix क्या होता है? देखिए बेटा, आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स हो अगर, ठीक है, सो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर हो एंड देयर इनक्लोज्ड बाय द स्क्वायर ब्रैकेट, देन दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स. आप कोई भी एक मैट्रिक्स ए हो, आप उसको अगर इस सिंबल में लिखें, जो सिंबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है, बिल्कुल 2 वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के बिटवीन उस मैट्रिक्स को लिख दे. ठीक है ना, दिस इज द डिटर्मिनेंट सिंबल. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है. अब आपके पास अगर मैट्रिक्स था, उसके एलिमेंट्स थे ए बी सी डी, आप उसके एलिमेंट्स को भी 2 वर्टिकल लाइंस में लिख दें. दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट. सो हाउ यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट, ये मैं आपको फार्मूला बता रही हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें. यू विल, आपकी बुक में क्या है, यू कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स. आपकी बुक में स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आएगा. ठीक है, नोट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करने के लिए नहीं आएगा. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है, जिसका ऑर्डर हमेशा 2 होगा. ठीक है ना.
टू रोज और टू कॉलम. एज यू नो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट you are having the determinant of square matrices of order 2 by 2 in your this chapter. इस चैप्टर में सिर्फ आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ऑफ द ऑर्डर 2 by 2 मैट्रिक्स. तो हाउ यू विल फाइंड इट, ठीक है. आप इसको फाइंड करने के लिए a को आप मल्टीप्लाई करेंगे d से, देन यू विल गेट AD, ठीक है. और b को मल्टीप्लाई करेंगे c से, देन यू विल गेट BC. सो AD एंड BC, and always you will place the minus sign between them. This is the strategy to find the determinant. So how you will find the determinant? हमेशा आप डिटर्मिनेंट 2 by 2 मैट्रिक्स का ही आपको फाइंड करने के लिए आएगा, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे. a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, b को मल्टीप्लाई करेंगे c से, और इनके बीच हमेशा आप कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का. समझ लें कि ये आपके पास डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक स्ट्रैटेजी भी है, एक फार्मूला भी है. हमेशा साइन कौन सा आएगा, माइनस का. ओके, सो हाउ यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है. फाइंड द डिटर्मिनेंट. फॉर एग्जांपल आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 8 15 7 -3. एज यू नो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, A B C D, ठीक है. और देखिए अभी अगेन उसने वही फार्मूला आपको लगा के बताया जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है. A मल्टीप्लाई बाई D AD, B मल्टीप्लाई बाई C BC, एंड यू विल प्लेस द माइनस साइन here, ठीक है. Now you are finding the determinant of this matrix, then determinant of this matrix is 8 15 7 -3. Then how you will find it, 8 multiply by -3, 8 multiply by -3, ठीक है, and 7 multiply by 15, ठीक है, एंड यू विल प्लेस द माइनस साइन बिटवीन दैम. अब 8 मल्टीप्लाई बाई -3 -24 माइनस, एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 15 -24 -104. यू विल एड दैम एंड यू विल गेट द आंसर इन योर माइनस फॉर्म. सो तो our नेक्स्ट टॉपिक इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है. अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, आई विल simply tell you about the inverse of matrix, but we will do all the practice in our exercise in our meet class. So inverse of matrix, what is inverse of matrix, ठीक है. the matrix PQRS has the inverse A inverse. किसी भी मैट्रिक्स को, as you know I have already told you in our chapter number 2 of D3, ठीक है ना. मैंने आपको इन्वर्स फंक्शंस पढ़ाए थे, ठीक है. जैसे एक फंक्शन था f, उसके इन्वर्स को डिनोट करते हैं ना आप f इन्वर्स से. सेम लाइक अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो A, तो उसके इन्वर्स को आप डिनोट करेंगे A इन्वर्स से. सो A इन्वर्स क्या होता है, अब 1 ओवर, ये मैं आपको रिपीट ऐसे बता रही हूँ लेकिन आपको मैं रिटन फॉर्म में करवाऊंगी इन आवर डिस्कशन क्लास, ठीक है. 1 ओवर. अच्छा, अब ये PS और माइनस QR क्या है, यू कैन सिंपली सी डैट वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स PQRS. वी विल अच्छा PS माइनस QR क्या है, इनका डिटर्मिनेंट नहीं है. देखो P को S से मल्टीप्लाई करेंगे PS, Q को R से मल्टीप्लाई करेंगे QR, देन 1 ओवर, इन अदर वर्ड्स यू कैन से डैट 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. तो PS माइनस QR, देन यू विल ऑल्सो प्लेस द, ठीक है, अगेन द मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स आपको गिवन है, बट यू विल डू द सम चेंजिंग हेयर. अब चेंजिंग क्या करेंगे, ये जो आपके पास मेन डायगनल होते हैं इसको हम डायगनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ये P और S. इन मेन डायगनल्स की आप जगह को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. P की जगह पे आप S लगा देंगे और S की जगह पे आप P लगा देंगे. हेयर आई हैव डन दिस, ठीक है, S P, अच्छा सॉरी, ठीक है. और सेम लाइक R और Q में अच्छा जो लीडिंग डायगनल होगा, जो दूसरे वाला डायगनल होगा, उनकी आप साइन चेंज कर देंगे. अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे. लाइक देखें यहाँ पे Q और R जो लीडिंग डायगनल है दोनों पॉजिटिव है, एंड वी हैव चेंज द साइन इज -Q एंड -R. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, A इनवर्स, किसी भी मैट्रिक का इनवर्स किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 1 ओवर, ठीक है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स. देखें PS माइनस QR का मतलब क्या हुआ कि हमने इस मैट्रिक्स का क्या ले लिया है, डिटर्मिनेंट लिया. P मल्टीप्लाई बाय S PS, Q मल्टीप्लाई बाय R QR, PS माइनस QR, एंड द नेक्स्ट वन व्हाट यू विल डू, ठीक है, हम इसी मैट्रिक्स में वी विल डू सम चेंजिंग. चेंजिंग क्या करेंगे, मेन डायगनल की हम की जगह चेंज कर देंगे. P की जगह पे S लगा दिया, S की जगह पे P लगा दिया, एंड द लीडिंग डायगनल के साइन चेंज कर देंगे. वेन एवर, अब एक कंडीशन आपने याद रखनी है, वेयर PS माइनस QR इज नॉट इक्वल टू 0. सो माई डियर, इट मीन्स दैट कि यू कैन फाइंड द इनवर्स ऑफ ओनली दैट वन मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स निकालना होगा तो सबसे पहले आप उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर आना चाहिए. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो नहीं होगा तो हम कह देंगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है. अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होगा तो फर्स्ट यू विल फाइंड द डिटर्मिनेंट, और अगर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो आएगा सो यू विल सिंपली राइट दिस द इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल. So this is the end of the theoretical portion of this chapter. This chapter is having totally this theoretical portion. अब जब हम exercise करेंगे तो it will be very easy to solve the exercise. ठीक है. So inshallah in our meet class we will discuss all the exercises related to these theoretical portion. We will do exercise 5b and 5c in our meet class. So at the end of my lesson I am sending you a dua. Please recite this dua many time in a day for this critical COVID. ठीक है. And keep me remember in your prayers. Thank you so much.